Hello students, in this lecture we will study of electrical capacitance, capacitor and its principle. So let's start. When charge is given to a conductor, its potential increases. Means, let us consider that we have a spherical conductor of radius r and charge q, then potential at on its surface is defined as v equals to kq upon r, where k is Coulomb constant or electrostatic constant and k is defined as 1 over 4 pi epsilon naught. So v becomes potential equals to q upon 4 pi epsilon naught r is the radius of this spherical conductor. Now students, if r is constant and 4 pi epsilon naught is already a constant, so v equals to q multiply by constant. So v directly proportional to q. It means if we have to rise the potential of the given system, we have to increase its charge, or if we are increasing its charge from the external source, then its potential will increase. दोनों एक ही बात है क्या? If we are increasing its charge, then potential will increase, or if we are increasing its potential, then charge will increase. So potential increase तो किया नहीं जा सकता, कैसे करेंगे? रेडियस तो हम कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें चार्ज इंक्रीज करना होगा. If we are increasing the charge, then potential will increase. So यहाँ हम कह सकते हैं कि V is directly proportional to Q. So when charge is given to a conductor, हमने उस कंडक्टर को चार्ज दिया, its potential increases. उसका potential increase होगा. This increase in potential of conductor is directly proportional to charge given to the conductor. मीन्स जो उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है वो उसको दिया गया जो चार्ज है उसके प्रोपोर्शनल होगा, और V is directly proportional to Q, or we can say that Q is directly proportional to V. So here if proportionality constant is C, then Q becomes CV. C is constant of proportionality and it is known as capacitance of conduction or conductor. And this capacitance also defined as the measure of ability of a conductor to store charge. Means charge को store करने की जो ability है, capacity है, that is called capacitance. कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है, वो जो ability है, capacity है, that is called capacitance of the conductor. Now from here Q equals to CV, so C equals to Q upon V. Means C equals to Q upon V. Q is charge given to the conductor, V is potential of the conductor. तो यहां से जो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? C equals to Q by V. If V is 1 volt, then C equals to Q. अगर यहां से देखना हम कैसे डेफिनेशन बनाते हैं, इफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर और अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर rises the potential of the conductor by 1 volt, then its amount is equals to capacitance of the conductor. Given आपको the amount of charge given to the conductor to increase its potential by 1 volt is equals to the capacitance of the conductor. Amount of charge given to conductor, ये हमने Q चार्ज किसी कंडक्टर को दिया, then increase in potential is 1 volt. Okay, then ये जो अमाउंट है वही क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. और दूसरे तरीके से भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है क्या? कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड. ये चार्ज हम किसको देंगे? कंडक्टर को देंगे
क्यों देंगे? 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए। सो द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट और 1 यूनिट। किसी भी कंडक्टर का 1 वोल्ट से पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड चार्ज है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट इज फैराड, 1 फैराड इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, बिकॉज C इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन V, और यहां से हम इसके डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसमें कूलम की डायमेंशन एंड वोल्ट की डायमेंशन, देन कंबाइंड डायमेंशन आपकी किसकी हो जाएगी? कैपेसिटेंस की, और इसकी जो यूनिट होती है वो फैराड होती है। द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस इज दैट it does represent the storing capacity of conductor to store charge, okay, or the ability of conductor to store charge। किसी कंडक्टर की स्टोर करने की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वह इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। फैराड इज वेरी बिग यूनिट, सो द कैपेसिटेंस इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन अदर स्मॉल यूनिट्स। जो आपका फैराड कैपेसिटेंस का यूनिट होता है बहुत बड़ा यूनिट होता है, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि बड़ा कैसे है। तो इसका जो स्मॉल यूनिट्स हैं, दीज आर 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड मींस 10⁻⁻⁶ फैराड, 1 पिकोफैराड 10⁻⁻12 फैराड, 1 नैनोफैराड 10⁻⁹ फैराड। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डज डिपेंड ऑन nature of conductor, size and shape of conductor, nature of conductor placed in the vicinity of a given conductor means nearby, उसके आसपास के कंडक्टर पे, nature of medium and temperature यहां अगर हम ये देखें कि 1 फैराड का डेफिनेशन क्या होगा, तो 1 फैराड का डेफिनेशन भी आप यहां से बना सकते हैं। 1 फैराड इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइड बाई 1 वोल्ट। सो प्रीवियसली अभी हमने क्या देखा था कि किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड चार्ज था वही कैपेसिटेंस के इक्वल था। तो यहां हम क्या कह देंगे, कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड। कैपेसिटेंस इज said to be 1 farad when 1 coulomb of charge rises the potential of the conductor by 1 volt। किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए हमने उसको जितना अमाउंट ऑफ चार्ज दिया एंड दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज 1 कूलम, देन कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 फैराड। सो द डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड कैपेसिटेंस इज capacitance is said to be 1 farad when 1 coulomb of charge rises the potential of conductor by 1 volt। Now the next topic is capacitance of a spherical conductor। So let us consider that we have a spherical conductor of radius r and charge on its surface is capital Q, okay। So potential on the surface of the conductor V equals to KQ upon R, and K is electrostatic constant and Coulomb constant or force constant, and its value is 1/4πε0। So potential on the surface of the conductor becomes Q upon 4πε0 R। So its capacitance C equals to charge given to the conductor divided by potential rises of the conductor due to this charge। So C equals to Q upon V, and Q divided by V is Q upon 4πε0 R। So capacitance or ability to store the charge of the conductor C equals to 4πε0 R। क्या बन जाएगा, यहां से Q कैंसिल होके ये ऊपर चला जाएगा एंड C equals to 4πε0 R बन जाएगा। 1/4πε0 आपका K होता है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, C equals to R upon K। ठीक है, K तो कांस्टेंट है और 4πε0
जो है कांस्टेंट है, इट मींस कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर. C is proportional to R. Okay. If we have two spherical conductors of different radius as R1 and R2, then the capacitance becomes C1 divided by C2 equals to R1 divided by R2. मीन्स जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस कम होगी उसका कैपेसिटेंस कम होगा. ओके. अब यहां हम चेक करेंगे कि 1 फैराड is a big unit. How? कैसे? So let us consider a spherical conductor of capacitance 1 farad. Then हमें 1 फैराड की बात करनी है कि ये एक बहुत बड़ा यूनिट है. कैसे? तो हमने एज्यूम कर लिया कि आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है. हमने एज्यूम कर लिया. देन स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ओके. C इज गिवन 1 फैराड. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी हम जानते हैं. ठीक है. और रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर 1 फैराड के लिए में यहां से मिल जाएगा एंड दैट विल बी R इक्वल्स टू C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. R इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिकॉज C क्या है आपका 1 फैराड. तो इस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं कितनी होती है 9 इंटू 10⁹. तो जो रेडियस है जिसका हमने कैपेसिटेंस 1 फैराड एज्यूम किया है उस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस हमें मिल रहा है 9 इंटू 10⁹ मीटर, अप्रोक्सीमेट 10⁻10 मीटर. दैट इज वेरी लार्ज यूनिट. द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड विल बी 9 इंटू 10⁻9 मीटर और अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 मीटर. मीन्स अगर 1 फैराड किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस है तो उसका रेडियस होगा 9 इंटू 10⁻9 मीटर. बहुत बड़ा रेडियस होगा विच इज ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ अर्थ. सो वी कैन से दैट 1 फैराड इज बिग यूनिट. मीन्स अपना यहां पे जो रेडियस मिला है वो एक बहुत बड़ा यूनिट मिला है. इवन अर्थ से भी 1000 टाइम्स ज्यादा रेडियस होना चाहिए तब जाके हमें 1 फैराड मिलेगा. तो अर्थ इतना बड़ा है तो इसे 1000 टाइम्स रेडियस के लिए कितना बड़ा सिस्टम बन जाएगा वी कैन एज्यूम. और यहां जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का जो रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर होता है. मीन्स 6400 इंटू 10⁻³ मीटर. ओके. सो अगर हम अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहें देन C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. R is 6400 किलोमीटर और 10⁻³ मीटर. तो when we will put the values of this term then we will get 711 माइक्रोफैराड. अप्रोक्सीमेट आपको जो कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ मिलेगा that will be 711 माइक्रोफैराड. You have to remember always. Now next one is very important topic, principle of capacitor. Since the capacitance of a conductor is given as C equals to Q by V. तो ध्यान से समझना इसको. C equals to Q by V और if Q is constant. अगर किसी भी कंडक्टर का चार्ज कांस्टेंट है then C is proportional to 1 by V. मीन्स अगर V को इंक्रीज करते हैं तो C डिक्रीज होगा और अगर V को डिक्रीज करते हैं then C इंक्रीज होगा. If the potential of a conductor is decreased, keeping the charge on conductor as constant, then capacitance of the conductor is increased. यही प्रिंसिपल है. किसी भी कैपेसिटर का अगर पोटेंशियल इंक्रीज किया जाता है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा. मींस पोटेंशियल को इंक्रीज करने से उसके जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होगी दैट विल बी डिक्रीज. और अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर दे या किसी भी वजह से उस कैपेसिटर का या कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए देन उसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. ड्यू टू डिक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज. इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं.
Let we have two plates where plate A is positively charged and B is neutral. The meaning of a neutral means net charge of the system is 0. यहां कहीं भी इसका मतलब ये नहीं है न्यूट्रल का मतलब कि उसके पास चार्ज ही नहीं है, नेट चार्ज 0. इट मींस देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. ओके, सो ये आपका सिस्टम है where A is the positively charged plate and B is a neutral plate, and in this neutral plate net charge is 0 or there is the existence of positive and negative charge in equal number. यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है इसमें और नेगेटिव चार्ज भी है बट इक्वल नंबर में है, सो नेट चार्ज इसका 0 बन गया. अब ये अभी फार अवे है, अवे फ्रॉम टू ए है. जब हम इसको पास लेके आते हैं देन क्या होगा, लेट्स सी. Here potential is V of the given system. When a neutral plate B is brought near A, charges are induced on B such that the side near A is negative and the other side is positive. जब हम B को A की साइड में लेके आएंगे तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है B प्लेट में वो इस प्लेट के चार्ज की वजह से अट्रैक्ट और रिपल होंगे. तो इसके पास का जो साइड है इस प्लेट में वो उस प्लेट पे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जो अपोजिट साइड है उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. सी हियर, ये पास आ रहा है, देखो जैसे ये पास आया देन यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज यहां पॉजिटिव जो चार्ज है इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज एंड रिपल टू पॉजिटिव चार्ज. तो जब पॉजिटिव चार्ज रिपल होगा तो इस साइड आ जाएगा और अट्रैक्ट होने के लिए ये इस साइड आ जाएगा. स्टिल पोटेंशियल इज V. देखिए इस प्लेट की वजह से हम पोटेंशियल की बात करें तो इसकी वजह से फील्ड होगा तो इसकी वजह से पोटेंशियल भी होगा. सपोज यहां पे XYZ समथिंग पोटेंशियल है इस A की वजह से और B की वजह से यहां पे पोटेंशियल नहीं होगा क्योंकि इसका नेट चार्ज 0 है. अब इस सिस्टम की बात करें तो इस प्लेट की वजह से पोटेंशियल यहां कहीं पे उतना ही होगा जितना पहले यहां था, बट B के लिए अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज के लिए यहां होगा और फिर इस पॉजिटिव चार्ज के लिए भी होगा. तो इन दोनों की वजह से तो कैंसिल आउट हो जाएगा और A प्लेट के लिए आपका पोटेंशियल उतना ही रहेगा जो पहले था. ओके, इट मींस the potential of the system of A and B in step 1 and 2 remains the same because the potential due to positive and negative charges of B cancel out. Potential of these charges negative and positive. तो इन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा और इसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल रहेगा एंड दैट विल बी कांस्टेंट और रिमेन कांस्टेंट एज प्रीवियसली. नाउ नेक्स्ट वन. In the next step, when the away from to this side positive charge side of B is grounded, then positive charge of B get neutralized and B is left only with negative charge. क्या मतलब हुआ कि हमने इस B प्लेट के पॉजिटिव चार्ज साइड को ग्राउंड कर दिया और ग्राउंड करते ही क्या होगा, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये वैनिश हो गया, खत्म हो गया. क्यों खत्म हुआ, क्योंकि जो हमने यहां पे ग्राउंड किया तो इससे जो कनेक्टेड सरफेस है इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा. और 0 होने के लिए या तो चार्ज ग्राउंड से सरफेस की तरफ आएंगे या इस सरफेस से ग्राउंड की तरफ जाएंगे. तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज था. On the surface there was positive charge. It means the negative charge will flow from ground to this surface and this positive charge on that surface will cancel out. ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा ड्यू टू ग्राउंडेड. अब जैसे ही आपने यहां ग्राउंड किया तो ये चार्ज नहीं है. अब यहां हम बात करें तो A की वजह से आपका एक पोटेंशियल होगा. There will be potential due to plate A and there will also be potential due to negative charge of plate B. इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहां पोटेंशियल होगा, बट
ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये जो इसका पोटेंशियल था इसको ये डिक्रीज कर देगा. इट मींस पोटेंशियल डिक्रीजेस टू स्मॉल v. अब प्रीवियसली अभी हमने देखा था इफ द पोटेंशियल डिक्रीजेस देन कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. और जब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा इट मींस एबिलिटी टू स्टोर चार्ज विल इंक्रीज. तो हम यहां क्या देख रहे हैं, the net potential of the system decreases due to the sum of positive potential on A and negative potential on B. इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से यहां पोटेंशियल होगा चार्ज की वजह से, एंड इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल होगा. दोनों को जब हम ऐड करेंगे देन इट विल डिक्रीज. सो टू इंक्रीज द पोटेंशियल टू द सेम वैल्यू, अगर इस स्मॉल v को हम कैपिटल V तक लेके आना चाहें, then same value as was in step 2, an additional amount of charge can be given to plate A. तो अगर हमें उतना ही पोटेंशियल यहां करना है तो A का चार्ज हमें इंक्रीज करना होगा. इट मींस वी कैन से दैट A plate has the ability to store the charge. It means that abilities increases. Abilities increases, it means capacitance increases. Okay? तो यहां इस बात को समझने के दो तरीके हैं. There are two ways to understand this thing. क्या कि potential decreases. Okay? यहां इसका potential decrease हुआ. It means C is proportional to 1 by V. Potential decreases, then C increases. So due to decrease in potential, capacitance of the system will increase, so the ability to store the charge will increase. This one is the first way to understand this concept. Next, potential decrease हुआ और पहले potential capital V है, तो इतना ही potential हमें करने के लिए additional amount of charge can be given to plate A. यहां पे हमें चार्ज और देना होगा, और जब हमें चार्ज यहां और दे रहे इसका मतलब है कि ए प्लेट के पास चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ गई है, मींस इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया है. दिस इज द सेकेंड वे टू अंडरस्टैंड दिस वन, एंड दिस ओनली द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस. दिस मीन द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज ऑन ए इंक्रीजेस. द सिस्टम सो फॉर्म इज कॉल्ड कैपेसिटर. तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर. ओके, और उस कैपेसिटर की एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, और ये उसका क्या होता है, सिंबल होता है. दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर और कैपेसिटेंस. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.